ओम शांति। आज हमें बड़ी खुशी है कि ज्ञान मानसरोवर चैनल पर हम सब के बीच बहन अंतोनिला, सिस्टर अंतोनिला, जो कि इटली के बोलोनिया सेंटर की इंचार्ज है और साथ साथ वो कुछ गीता पाठशालाएं भी चला रही है, 4-5। और मैंने बहुत विदेशी देखे हैं, लेकिन इस आत्मा में इतना परिपक्वता, इतनी योग की स्थिति। तो हमने एक वीडियो देखा, 3 लाख से ऊपर इसने योग सिखाया, तो सारे इटली के लोगों ने देखा। और फिर ये काफी सेवा करती रहती है। एक न्यूज़लेटर भी, राजयोगा न्यूज़लेटर यहाँ इटली में निकालते हैं, जिसे 60,000 लोग पढ़ते हैं। तो बाबा की बड़ी परिपक्व बच्ची और बहुत सेवा करने वाली। देखिए कैसे भारत में माउंट आबू से सीख के राजयोग, और ये किस तरह विश्व भर में सेवा बाबा के डबल फॉरेनर बच्चे कर रहे हैं। तो आओ सुनते हैं इनका अनुभव। सिस्टर अंटोनिला, जस्ट वेलकम टू ज्ञान मानसरोवर चैनल। Thank you so much, brother. Sister Antonilla, I want to ask the question, how you came in Brahma Kumaris. I think you are Christian from background. Yes, it's true. And if you are Christian background, how you came in this Brahma Kumaris institution, knowing that this is an Hindu institution? Right. Then how your inclination came in this? I was very interested in religion when I was a kid, but then little by little I lost interest. Probably something normal while we become teenagers. ये कह रही है कि मैं बचपन में बहुत इच्छुक थी, फिर धीरे धीरे मेरा ये इंटरेस्ट कम हो गया। I remember going to church when I was a kid and listening to the scriptures with a lot of interest. मैं चर्च में जाती थी जब छोटी थी, और फिर बड़े ध्यान से वो जो सुनती थी, शास्त्र आदि जो भी स्क्रिप्चर। But then growing up, the interest fade away and I start looking for something more, something deeper. हाँ, मतलब जब मैं बड़ी हुई फिर इंटरेस्ट कम हो गया, फिर मैं कुछ गहरी चीज, उसकी गहराई में जाने की चीजें ढूंढने लगी। And then one night I had a dream and I dreamt the founder of the Brahma Kumaris. Without any connection with Brahma Kumaris? Nothing. Wonderful. देखो, कहते हैं बाबा कैसे अव्यक्त बाबा की सेवा सारे विश्व में की है। कहती है एक रात को स्वप्न में मुझे पिता श्री ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। Of course, I didn't know who that man was. I only saw the face for 3 consecutive nights. और कहती है कि मैं जबकि जानती नहीं थी ये कौन है, पर 3 लगातार 3 रातों को, 3 nights continuously you saw, तो लगातार 3 रात ब्रह्मा बाबा इन्हें दिव्य दृष्टि में, स्वप्न में दिखाई देते रहे। And the voice behind the image of this face, unclear face, that was saying, this man, indicating, the figure I was seeing, this man will tell you the truth. कहती है कि उसमें पीछे से जो आवाज आ रही थी, वो मुझे कह रहा था कि ये व्यक्ति ही तुझे सत्यता की पहचान कराएगा। And so my first thought was, which language does he speak? हाँ, पहला ही मेरे को संकल्प आया कि ये कौन सी भाषा बोलता है। Because the face was not Western, but I could not identify where he was from. हाँ, कहते क्योंकि चेहरे से ये कोई पश्चिमी देश का तो नजर नहीं आ रहा था, तो मैं पहचान नहीं पाई ये आखिर है कौन। So I thought, maybe he speaks English, and I did speak English already, but maybe he will speak an Oriental language. हाँ, मतलब मैं सोचा शायद ये इंग्लिश बोलेगा तो मैं इंग्लिश समझूंगी, हो सकता है कुछ और बोले। जी। So I decided to study an Oriental language, and I did.
And Which language? I studied Japanese. Acha, you other language. You Yeah. started. Okay. Oriental language. And then I went to Japan to practice the language, and there I met the Brahma Kumaris. अच्छा, तो कहती मैंने इसलिए दूसरी जापानीज लैंग्वेज सीखनी शुरू की और फिर वहां मैं जापान गई ताकि मैं उसे समझ पाऊंगी। तो वहां पर ब्रह्मा कुमारी बहन मिली, सिस्टर ब्रह्मा कुमारी यू मेट In Japan? in Japan. Whom to, Sister Rajni? No, it was a brother that gave me the knowledge. अच्छा, कोई भाई मिला जापान में, but you Japan went for the learning of the Japanese language. I did learn it in Milan, complete the university so that course. I can understand the voice of the that angel. Yes. अच्छा, उस फरिश्ते को मैं समझ पाऊं, तो how you thought that he is Japanese? No, I didn't think he was Japanese. I only had the thought that I had to learn another language. हाँ, कहते ऐसा तो नहीं समझा, लेकिन मैं समझा कुछ और भाषा सीखूं। तो वहां पर भाई मिला जो ब्रह्मा कुमारी का परिचय दिया। That intention remained in my mind, and then I forgot the dreams completely. ठीक है, then मैं भूल गई स्वप्न को। तो then he met the Brahma Kumari brother in Japan. Yeah, because I learned that language. I went there and I learned. I came to know the Brahma Kumaris there. Okay. Which it couldn't happen in Italy. So you got this knowledge in Japan? Yes. In which city? Tokyo. टोक्यो। तो कहती मैं जापानी सीख के जापान गई, टोक्यो में वहां भाई मिला, तो वहां मुझे ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मिला। And it was perfect in drama because I could not take Gyan in Italian. हाँ, ये भी एक ड्रामा में निश्चय पक्का ही था, कुछ कल्याण ही था जो मुझे इटली में ज्ञान नहीं मिला, जापान में। Then you there on center you saw the picture? Brahma Yes, but I didn't recognize him. I only recognized him 10 years after. Because I completely forgot the dreams, completely removed from कहती my हाँ, उस वक्त तो मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन 10 साल बाद मुझे पहचान आई कि ये तो वही ब्रह्मा बाबा जिसका सपना देखा था। Right. And 10 years after, during meditation, eventually looking at the picture, I thought, this is the man of my dream. देखा तो समझा यही तो था जो मेरे स्वप्न में आया था। जब ध्यान पूर्वक देखा तो then you attended classes at Japan. I did the course and then one Murli only. Then I came back to Italy. अच्छा, कोर्स किया, मुरली सुनी और फिर इटली वापस आ गई। Then in Italy there was only one center, Rome. हाँ, इटली में केवल एक ही सेंटर रोम में था। And they invited me to live in the center after 9 months. अच्छा, 9 महीने के बाद उन्होंने मुझे सेंटर पे निमंत्रण दिया रहने के लिए। And then they up to 9 months you are regularly touch with Rome center. Of course, yeah. But living in Bologna. No, living in Rome. Living in Rome. रोम में रही और वहां रोज क्लास करती रही। डेली यू आर अटेंडिंग द क्लास? डेली। रोज क्लास करती रही। तो 9 महीने बाद उन्होंने सेंटर पे रहने का निमंत्रण दिया। And Genti Didi came after a week. I returned to Rome and she explained to me all the Mariadas because I didn't know many of them. 9 महीने के बाद जयंती बहन आई तो उन्होंने फिर मुझे सारी मर्यादा बताई। जी, सेंटर पे रहने की मर्यादा। And so you started living first, then you came to know about Maryada? No. अच्छा। When I came to Rome after a week, Jayenti Ben came. अच्छा, रोम में आने के सप्ताह बाद ही जयंती बहन आई, उसने सारी मर्यादाएं बताई। So Jayenti Ben has been very instrumental for my growth. And then 9 months after, they asked me to live in the center. अच्छा, then you are following all Maryadas? Of course. हाँ, मतलब वो जैसे आई वहां से तो फिर 9 महीने हफ्ते बाद ही सारा मर्यादा पता लगी तो पालन करती रही और 9 महीने के बाद फिर उन्होंने कहा आप सेंटर पे रह सकती हैं। Then after Daddy Janki came in Rome and we were 4 sisters living in a small center.
हाँ, दादी जानकी आई, हम 4 बहनें उस छोटे से सेवा केंद्र रोम में रह रही थी। So she said, the 2 of you go and open the center in Milan and 2 stay in Rome. उसने कहा 2 जनी जाओ तो मिलान इटली में दूसरा शहर है, वहां में सेंटर खोलो और 2 यहाँ ठहरो। So because I knew Milan very well, I studied there, my university degree. So I went first and I found the center and then we opened it. अच्छा, तो मैं फिर हम 2 जने जिसमें मैं भी थी गई, क्योंकि मैं मिलान यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ और बाबा का सेंटर वहां खोल दिया। And after 3 years in Milan, because I knew also the island of Sardinia, they sent me to Sardinia to open another center. अच्छा, फिर आफ्टर 3 ईयर फिर इन्होंने सिर्डिनिया एक और सेंटर खोला। And then after 10 years in Sardinia, they told me, now you go to Bologna and open another center. फिर उसके 10 साल बाद फिर बोलोनिया सेंटर खोलने के निमित्त बनी। It's been 4 center you given service. And many cities where we come and go regularly. और बहुत सारे शहरों में भी बाबा की स्थान गीता पाठशालाएं खोली। तो from how much time you are in Bologna? 25 साल से अभी बोलोनिया में है। वैसे यू आर इन ज्ञान 36 nearly 37 36-37 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। तो आपको इस तरीके आप बाबा की इतनी अच्छी बच्ची कितना सेवा इटली में करने के निमित्त बनी। हाँ, सब भाई बहनों को देख के खुशी हो रही होगी कि भारत में हम रहते हुए कितना थोड़ी सेवा कर पाते हैं, और विदेशी बाबा इंस्ट्रूमेंट जिनको चुनता है दिन रात बाबा की सेवा में। And there is no exam from your family when you came in ज्ञान, why you are going to this religion? Of course. अच्छा, कहते हाँ एग्जाम तो आए। क्या, what exam you passed? I was already vegetarian and the reaction to vegetarianism was already going on. But also they didn't like me deciding not to get married. अच्छा, मतलब वेजिटेरियन भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था और मैं शादी नहीं कर रही। Your parents did not like this. But you have पक्का in of your... course, yeah. I was pretty independent. अच्छा, वेरी गुड। देखो भाई बहनों, कैसे व्हाइट साड़ी पहन के, फरिश्ता बन के, ब्रह्मा कुमारी रिप्रेजेंटेटिव बन के सब जगह इतनी सेवा करती है बाबा की। मैं तो देख के हैरान हो गया। परसों यहाँ इनके एक बुलावे पे यहाँ 30 इटालियन बड़े बड़े सारे इटली के मेन फॉरेनर सारे आए और बहुत सेवा कर रही हैं, और ऑनलाइन भी बड़ी क्लासेज कराती हैं, तो बड़ी प्रसिद्ध हैं इटली में, काफ़ी अच्छी सेवा कर रही हैं। तो हाउ यू हैव गिवन द मैसेज टू ऑल इटालियन ब्रदर्स सिस्टर्स? We do a lot of program online, but also according to Baba's instruction, he said in Italy just spread the message going into different cities. Good. Baba Very himself said that, so we go in every city where they invited us. Very good, very good. कहती बाबा ने कहा सब तरफ संदेश फैला दो, हर शहर में। तो मैं यही कर रही हूँ, इटली के हर शहर में बाबा का संदेश पहुंचाएं। तो प्यारे भाइयों बहनों, देखो बाबा ने कहा है कि विदेशी भाई बहनों से भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। भारत में भगवान आया और इन्होंने फायदा उठाया। तो यू आर गोइंग मधुबन, माउंट आबू एवरी ईयर और sometime missing, sometime twice a year. लो भाइयों बहनों, देखो कहती है कभी कभी वर्ष में 2 बार जाती हूँ, 1 बार तो जाती हूँ। मीन लास्ट 30 years you have visited 30 time. Maybe 45. 45. Maybe 50. 50 इतने उससे अधिक की। ये हैं बाबा के पक्के ब्राह्मण बच्चे जो किसी भी बाप दादा मिलन प्रोग्राम मिस नहीं करते, कोई बाबा का क्लास नहीं। तो have you attended every Amrit Vela regularly or sometime missing? No, how can Never. you miss? Lao ji, last 30 years never miss. Actually, Amrit Vela for me is the foundation of Brahmin life. अमृत वेला मेरे लिए फाउंडेशन है ब्राह्मण लाइफ, but last 25-30 years never missed. No.
वाह वाह भाइयों बहनों, ताली बजाओ। पिछले 30-35 साल maybe से once I was in the hospital. कहती मैं जब हॉस्पिटल में थी तब केवल एक बार मिस हुआ, 30 साल में 35 साल में कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। देखो भाई, ये बाबा के विजयी रतन है, जो कितना बड़ा कार्य। नेवर मिस मुरली इन लास्ट 30 इयर्स। Of course not. कहती मतलब नहीं बाबा के ब्राह्मण बच्चे मुरली मिस करें। आज भाइयों बहनों संकल्प लो, जैसे ये बच्ची इतना बाबा का नाम प्रत्यक्ष कर रही है, आप सब भी अपनी धारणाओं को पक्का करके आपको ऐसा बनना है। Also because I usually read the Murli, so how can I miss it? कहती जब मुझे पढ़नी है मुरली तो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। अच्छा, ओम शांति। ये था प्यारे बाबा की विशेष रतन बहन एंटोनिला का विशेष अनुभव। थैंक यू। ओम शांति। Thank you to everybody. Thank you.